Jai Lord Sri Ramachandra ki Jai. We'll continue singing the same kirtan, the Panchatattva kirtan. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone sing loudly. Please try to join in the singing. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Sri Ramachandra appearance day Mahotsav ki, Sri Ramanavami celebrations ki, Bhagavad Gita ki, Hari Bol, Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much for the enthusiasm and participation in the Kirtan. Am I audible clearly? If someone can confirm, Ravi Prabhu or
Ravi Prabhu, am I audible? Can be seen? Yes, perfectly. Okay, thank you very much. So then we get going. We begin with some discussions. Srimad Bhagavad Gita. We move ahead in chapter 2 this evening. But before that, we will do the invocation prayer as usual. After invocation prayer, we'll be asking you, आपसे पूछेंगे थोड़ा सा पुराने सेशंस में से, maybe 1 or 2 people can speak something if you want to, and then we have very important section to cover this evening. आज हम भगवत गीता के चैप्टर 2 से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर करेंगे. My humble prayers and request to keep your full attention. Also, if possible, keep your videos on. It helps us to be more attentive. आप अपने वीडियो ऑन रखेंगे तो आपको हेल्प करेगा वो. Because Bhagavad Gita we cannot learn without attention. You know, it is a very sublime science. तो अगर आप पूरे attention से participate करेंगे, it will be helping everyone. You will not be helping yourself. You will also be helping others in the class, because everyone will get that, you know, inspiration. Okay, so let's then begin with invocation prayers quickly. हम invocation prayers को बोल लेते हैं और उसके बाद फिर आप में से 2 भक्त कोई पुराने सेशन पे कुछ बता सकते हैं अभी तक जो हमने कवर किया चैप्टर 2 में, और फिर हम आगे चलेंगे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सापदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हरे कृष्णा. Okay, thank you Ramesh Chandra Prabhu for your message. Ramesh Chandra Prabhu कह रहे हैं कि because of poor network he is not able to keep the video on, which is absolutely fine Prabhu. Thank you so much. But in every class you are keeping it on. It is a great inspiration for all of us. So हम लोग चलते हैं भगवत गीता के. अभी तक हमने जो कवर किया चैप्टर 2, उसमें से आप में से कोई भक्त शेयर करना चाहेंगे? I would encourage all of you to raise your hands. We should have more hands and less time. कि अभी तक हमने क्या चर्चा किया है चैप्टर 2 में.
maybe in one line. Okay, let's first hear from Dushyant Prabhu. Yes, Dushyant Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे मैंने आपने जो श्लोक 11 से और श्लोक 30 तक हमने पढ़े जो भी है, उसमें उस दिन आपने बताया था कि जो हम वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। तो मेरा एक डाउट इसमें ये रह रहा है कि मतलब सोल का तो कोई फिर अस्तित्व नहीं है ना, मतलब सोल की जो आइडेंटिटी है वो तो बॉडी से ही है। अगर बॉडी नहीं है तो फिर सोल को कौन पहचानेगा कि सोल हैवी? अगर Okay. सोल, तो ये मेरा डाउट है। और एक और चीज, जैसे कि सोल अनादि मतलब अजन्मा है, अनादि है, अनबोर्न है, तो फिर एक डाउट और होता है कि जैसे कि एक बच्चा है तो उसकी जो सोल आती है तो वो तो जैसे कि वो करोड़ों साल पुरानी है, तो उसकी मेमोरी तो फिर डिलीट हो जाती है, फिर वो नया जन्म लेती है, तो फिर नए स्तर से स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने बीटेक किया है और अब मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं मतलब बीटेक वाली बात बोलूं, नहीं, मैं तो जीरो से स्टार्ट होता हूँ हर बार। तो फिर मेरी जो आयु है वो फिर तो जीरो से होगी ना, बार बार सोल की जो आयु है जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो ये कुछ डाउट चल रहे हैं मेरे दिमाग में। Okay, very nice. Thank you very much, Prabhu, for your questions. So your first question is about कि जो आत्मा है उसका अस्तित्व है ना? So it is the other way around. ये exactly इससे अपोजिट है। बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं है आत्मा के एब्सेंस में। जस्ट लाइक ये जो जैसे और ये एग्जाम्पल भगवान खुद देते हैं, जो हमने श्लोक डिस्कस किया ऑलरेडी उसमें, कि भगवान इस बॉडी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? वाशाम सी जीर्णानि। तो ये जो बॉडी है इसको कपड़ों से कंपेयर किया गया है ना, कि जैसे ये कपड़े इस शरीर के ऊपर हैं, इसी तरह जो बॉडी है वो सोल के ऊपर है। तो बॉडी के अंदर जो लाइफ है, बॉडी का जो अस्तित्व है, बॉडी का जो एग्जिस्टेंस है, वो सोल की वजह से है। सोल इज इटर्नल। सोल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है, और जैसे ही सोल एक नए गर्भ में आता है तो सोल के अराउंड बॉडी डेवलप होता है, और वो बॉडी जो है फिर सामने आता है ना। तो सोल इज द मेन पर्सन, बॉडी उसका कवरिंग है। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो ऐसा नहीं है कि बॉडी कोई है और उसके अंदर वो सोल, जब बॉडी अस्तित्व है और उसमें सोल उसको आके हेल्प कर रहा है। सो सोल इज द मेन लिविंग एंटिटी, बॉडी इज जस्ट कवरिंग। बॉडी के अंदर ये जो लाइफ दिख रहा है वो लाइफ केवल सोल की वजह से दिख रहा है। जिस दिन ये सोल इस बॉडी से आउट, लाइफ भी आउट। करेक्ट? तो हमने उस दिन डिस्कस किया था डॉक्टर अब्दुल कलाम के एग्जांपल से कि द सिम्टम ऑफ लाइफ, द सिम्टम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हम जो जीव हैं, जो हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका जो पूरा कॉन्शियसनेस, उसका जो सिम्टम है, उसका सोर्स क्या है? सोल। बॉडी उसका कवरिंग, राइट? तो सोल का अस्तित्व हमेशा है, बॉडी का अस्तित्व टेम्परेरी है। आज ये बॉडी है, थोड़े दिनों बाद ये बॉडी नहीं रहेगा, लेकिन सोल हमेशा रहेगा। तो सोल का अस्तित्व है, बॉडी का भी अस्तित्व है, टेम्परेरी नेचर का है लेकिन, ओके, बट दैट इज नॉट इटर्नल। ये बॉडी जो है इटर्नल नहीं है, बॉडी टेम्परेरी है। करेक्ट? सो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज, आपने जो बोला कि दोबारा से हमने बीटेक किया, करेक्ट? तो जो सोल है, डेफिनेटली जैसे भगवत गीता में आगे भगवान बताएंगे कि वो रिमेम्बरेंस और फॉरगेटफुलनेस देते हैं। बोथ रिमेम्बरेंस यानी कि याद रखने की शक्ति और फॉरगेट होने की शक्ति, भूलने की शक्ति, दोनों भगवान देते हैं। तो जब हम नया बॉडी में आते हैं तो भगवान के अरेंजमेंट से ये जो पुराना हमारा जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन, कॉन्शियसनेस, वो क्या है? वॉश हो जाता है। लेकिन कुछ रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि लोगों को अपना लास्ट लाइफ याद भी रहता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपको अपना बचपन अच्छे से याद हो, लेकिन हो सकता है मुझे अपना बचपन उतने अच्छे से याद ना हो, है ना। हर एक व्यक्ति को अलग अलग एक लेवल का रिमेम्बरेंस होता है, करेक्ट।
आपको कितना याद है दुष्यंत प्रभु अपना बचपन? आपको याद है जब आप 3 साल के थे तो क्या करते थे? नहीं, मुझे उस टाइम का याद नहीं है, मतलब मानो तो 6 साल के करीब का याद होगा, उससे पहले का याद नहीं है। ठीक, तो मुझे मुझे याद है थोड़ा सा, 3 साल का 4 साल का थोड़ा कुछ याद है ना, हो सकता है किसी को और अच्छे से याद हो। करेक्ट? तो इस तरह से हम सबका अलग अलग रिमेम्बरेंस का लेवल है, लेकिन 99.999% केसेस में जैसे ही ये बॉडी का चेंज, जब ये ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल होता है तो भगवान उसका सारा जो रिमेम्बरेंस है उसको फिनिश कर देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये भूल जाना। अगर हम इसको भूलेंगे नहीं, अगर हमारा लास्ट लाइफ में आपने पीएचडी किया है और इस लाइफ में जब आप टीचर पढ़ाने जाएंगे और टीचर पढ़ाएंगे ए फॉर एप्पल, आप उसको बोलोगे अरे तुम मुझे ए फॉर एप्पल क्या पढ़ाओगे, मैंने तो पीएचडी किया हूं, राइट? सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि वो आपका रियलिटी नहीं है। अभी आपके पास पीएचडी का डिग्री नहीं है लेकिन कुछ रिमेम्बरेंस है। इसीलिए इट इज वेरी गुड कि हम पुराना लाइफ को भूल जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा लाइफ ही दूसरा हो गया। बॉडी चेंज हुआ, सर्कमस्टांसिस चेंज हुआ, उसके साथ जो मेमोरीज है वो चेंज हुआ, लेकिन पर्सन वही है। द पर्सन रिमेन्स द सेम। वही व्यक्ति फिर अगला बॉडी में जाता है और उस पर्सन के साथ क्या है, उसका कर्मा का जो अकाउंट है वो भी साथ में जाता है। इसीलिए कुछ बच्चे जो है पैदा होते ही बीमार पैदा होते हैं, क्योंकि उनका जो कर्मा का अकाउंट है वो उनके साथ आ रहा है। अगर उनका जो कार्मिक रिएक्शन का जो बैलेंस है वो उनके साथ आ रहा है अभी, तो बिकॉज ऑफ विच वो पैदा होते ही वो, कई बच्चे बहुत बीमार होते हैं, कई बच्चे बहुत धनी परिवार में पैदा होते हैं, कई बहुत गरीब परिवार में पैदा होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग देयर कार्मिक रिएक्शंस विद देम, राइट? सो इन दिस वे, सो इट इज गुड कि हम भूल जाते हैं। ओके, डज दैट हेल्प्स दुष्यंत प्रभु? आपको इससे कुछ मदद हुआ इस आंसर से? ओके, thank you. Then we have some more hands raised. So this time is more for reflections, but anyway, questions are also okay. We want to hear from Harsh Prabhu. Harsh Prabhu, you want to share something? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस प्रभु जी। सो जो लास्ट सेशन हुआ था हमारा, उसमें फ्रॉम वर्स चैप्टर 2 वर्स 11 to 30, मोस्ट ऑफ द टाइम जो इस वर्स में डिस्कशन हुआ था इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल, कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल दैट आर डिस्क्राइब्ड बाय कृष्णा। सो देयर आर 3-4 most important verses that you ask to learn and other things as well. For example, one is Nanam Shabdam Visastan, very common one, and other thing is Vasan Sujaynani. And there is one very common one is where Krishna was saying that I think that's a verse number 21st, where he was saying that soul is indestructible, eternal, unborn, and immutable to kill or anyone that can cause any harm to soul. So you fight. So Krishna was ordering Arjuna to fight. So it was like तो आपने explain किया था कि if we do something, even if we are killing something, killing someone by order of Krishna, by for a good cause, so that is also in that sense it's kind of a devotional service, because we are doing it at the instruction of Krishna with full knowledge. So Okay. that is not a possible, I mean, that is not a sinful reaction kind of thing. So these kind of discussion also had. Most of the time the characteristics of the soul described. Okay, very nice. So last section जो हमने किया था, very nice, thank you हर्ष प्रभु। लास्ट सेक्शन में हमने essentially आइडेंटिटी के ऊपर चर्चा किया था। हम अपने आप की आइडेंटिटी के हिसाब से अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं। उदाहरण कीजिए कि एक कोर्ट का जज है और उसके सामने उसका बेटा जो है, उसी का ही केस है। वैसे ऐसा सिचुएशन होता नहीं है, नॉर्मली उस जज को वो केस मिलेगा नहीं, लेकिन सपोज कीजिए एक जज के सामने उसी का बेटा जो है सामने है, तो वहां पे उसके पास दो आइडेंटिटीज हैं। ही इज ऑल्सो ए फादर, उसके पिता भी हैं, एंड ही इज ऑल्सो ए जज, करेक्ट? और सो उस टाइम पे, और उसने सपोज उसने ऐसा कुछ काम किया कि उसका सजा बनता है, करेक्ट? तो उस फादर के पास जो है वो अपने आप को उस समय कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो व्यक्ति, उसके हिसाब से वो एक्शन लेगा। अगर वो अपने को एज ए जज, जो कि उसका
रिलीजियस ड्यूटी है, रिलीजियस ड्यूटी, तो रिलीजियस ड्यूटी के हिसाब से वो उसको, है ना, उसका जो भी कड़ा पनिशमेंट होगा वो उसको देगा। लेकिन उसके साथ में एज ए फादर उसका ड्यूटी भी है उसके अपने सन को प्रोटेक्ट करने का। तो उसका जो कुल धर्म है, कुल धर्म या फिर जो उसका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी उसका सामने आएगा। तो ये अर्जुन के सामने भी एग्जैक्टली ऐसा ही सिचुएशन है। एक तरफ कुल धर्म है, कुल धर्म जहाँ पे उनका अपना फैमिली, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके टीचर्स, ये कुल धर्म है। उनको रिस्पेक्ट करना उनका कुल धर्म है, जैसे कि हम अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करते हैं। साथ में ही एक क्षत्रिय होने के नाते वर्णाश्रम के हिसाब से जो उनका धर्म है, रिलीजियस ड्यूटी जो उनका है, वो एक क्षत्रिय का है। और क्षत्रिय के हिसाब से उनको फॉर द राइट कॉज फाइट करना है। यू अंडरस्टैंड अर्जुन का प्रॉब्लम क्या है? अर्जुन का प्रॉब्लम है कुल धर्म वर्सेस जो उसके वर्ण धर्म, जो उसके वर्ण आश्रम के हिसाब से जो उनका धर्म है। कुल धर्म के हिसाब से उनको अपने, तो अर्जुन अभी तक चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हुए अपने कुल धर्म की ड्यूटीज को बता रहे हैं कि कुल धर्म ऐसा होगा। वो बोल भी रहे हैं कि जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी क्लोज द डोर। सॉरी, तो हम बात कर रहे थे कि वाई देर इज सो मच कंफ्यूजन। अर्जुन इतना कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि एक तरफ उनका कुल धर्म है जो उनको एनकरेज कर रहा है कि वो फाइटिंग ना करें, और दूसरी तरफ एज ए क्षत्रिय, क्योंकि ये राइटियस वॉर है, एक राइटियस कॉज के लिए ये वॉर है। ये जो अगर ये वॉर होगा तो धर्म की रक्षा करने के लिए होगा, तो यहाँ पे उनका क्षत्रिय धर्म भी है। तो भगवान चाहते तो अर्जुन को सीधा उनका जो क्षत्रिय धर्म या उनका जो रिलीजियस ड्यूटी है वो उनको बताते, लेकिन भगवान इस चैप्टर में, ये भगवत गीता का जैसे मैंने बताया था पिछली बार भी हमने चर्चा किया था कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि भगवान इसमें अर्जुन को सबसे पहले उनकी आइडेंटिटी समझाते हैं। जब उनको अपनी आइडेंटिटी समझ आ जाएगी तो आइडेंटिटी के हिसाब से फिर अपना धर्म डिसाइड करने में आसान होगा। डू यू अंडरस्टैंड? जब हमें अपनी आइडेंटिटी मिल जाती है तो आइडेंटिटी में हमारा क्या रोल है वो हम समझ पाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप में से कितने लोग मैरिड हैं? हैंड रेज कीजिए प्लीज। मैरिड 1 2, ओके, मैनी ऑफ यू आर मैरिड, राइट? ठीक है। अब ये जो, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो है आपकी एक तरह से फंक्शनल आइडेंटिटी है। फंक्शनल आइडेंटिटी आज की डेट में आपकी ये आइडेंटिटी है कि आप मैरिड हैं, राइट? दिस इज फंक्शनल आइडेंटिटी। लेकिन कुछ समय पहले अगर यही क्वेश्चन मैं आज से 10 साल पहले पूछता या 20 साल पहले पूछता तो आप में से कई लोगों के हाथ जिन्होंने अभी रेज किए थे वो रेज नहीं होते, करेक्ट? तो इसको बोलते हैं फंक्शनल आइडेंटिटी। फंक्शनल आइडेंटिटी मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में किसी फंक्शन में मेरी ये आइडेंटिटी है कि आई एम मैरिड, और आप मैरिड होने के कारण आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है, आपको अपना फैमिली के प्रति, वाइफ के प्रति, घर के प्रति, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने का कोशिश कीजिए कि यहाँ भगवान ये क्यों ले आए, एकदम से सोल का टॉपिक क्यों ले आए, जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। क्योंकि भगवान अर्जुन इज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज ड्यूटी। अब ड्यूटी कहां से आती है? ड्यूटी आती है आइडेंटिटी से, करेक्ट? जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कहां से आती है कि वो जैसे उसकी आइडेंटिटी मिल जाती है, पुलिस वाले को जैसे ही वर्दी मिल जाती है तो उसकी ड्यूटी भी आ जाती है। जैसे ही एक प्राइम मिनिस्टर ओथ, जो एक पॉलिटिशियन ओथ लेता है तो वो उसकी आइडेंटिटी बनने से जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की आइडेंटिटी बनती है उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। यू अंडरस्टैंड? सो हमारी आइडेंटिटी से हमारी सही ड्यूटी पता चलती है।
जैसे आपको एक कंपनी ने हायर कर लिया सीईओ, जैसे ही आपको आइडेंटिटी दे दी, आपका ड्यूटी शुरू हो गया, आपको क्लियर हो गया कि मुझे क्या करना है। इसी तरह से भगवान, क्योंकि अर्जुन इज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज ड्यूटी, अर्जुन अपनी ड्यूटी को लेकर क्योंकि कंफ्यूज्ड है कि मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए भगवान पहले अर्जुन को उनकी आइडेंटिटी का बोध करा रहे हैं। तो जो पिछला सेक्शन हमने कवर किया, दैट वाज अंडरस्टैंडिंग आवर आइडेंटिटी, क्योंकि हमें अपनी आइडेंटिटी में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हम अपनी आइडेंटिटी को बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह से कई बार हम अपने आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस ग्रुप मैनी पीपल विल आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज इंजीनियर्स। इस ग्रुप में कई सारे लोग होंगे जो अपने आप को इंजीनियर्स के लिए आइडेंटिफाई करेंगे, कई लोग होंगे जो अपने आप को हाउसवाइफ की आइडेंटिटी में लाएंगे। लेकिन ये सारी हमारी फंक्शनल आइडेंटिटी है जो कि चेंज होती रहती है ना। द फंक्शनल आइडेंटिटी कीप्स चेंजिंग। एक तरफ आइडेंटिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं इस क्लास में कितने चिल्ड्रन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 16 ईयर्स, प्लीज रेज योर हैंड। 16 साल से कम उम्र वाले बच्चे यहाँ पे कितने हैं? सो दिस इज, यू सी, सो वी हैव कपल ऑफ हैंड्स विच आर रेज्ड। सो दिस इज फंक्शनल आइडेंटिटी। बट दिस इज इट आवर परमानेंट आइडेंटिटी? क्या ये मेरा परमानेंट आइडेंटिटी है? कैन यू से दिस इज माई परमानेंट आइडेंटिटी? अंजलि माता जी, अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे 2 साल बाद पूछूंगा या 3 साल बाद पूछूंगा तो आप बोलोगे इस कैटेगरी में आएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, लो प्रभु जी। नो, राइट? सो देयरफॉर हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अगर पॉइंट हमें समझ आया तो लाइफ के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर पाएंगे। क्योंकि हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स का एक रीजन है कि हम अपनी आइडेंटिटी को डिफरेंट रोल्स में समझ नहीं पाते। हम अपनी फंक्शनल आइडेंटिटी को तो कई बार समझ लेते हैं। तो एक है हमारी फंक्शनल आइडेंटिटी, जैसे कि बताया इंजीनियर, लेस देन 16 ईयर, मोर देन 16 ईयर, हाउसवाइफ, वर्किंग, नॉट वर्किंग, ये सारे फंक्शनल आइडेंटिटी। एक है हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी, फंडामेंटल। तो फंक्शनल वर्सेस फंडामेंटल, आप समझ पा रहे हैं ये पॉइंट? फंक्शनल मतलब अभी के कॉन्टेक्स्ट में जो मुझे लग रहा है मेरी ड्यूटीज, बिकॉज ऑफ माई एज, बिकॉज ऑफ माई जेंडर, बिकॉज ऑफ माई ऑक्यूपेशन, दैट इज योर फंक्शनल आइडेंटिटी। और फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है? बताइए, हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है? कोई बता सकता है कि हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है जो कि कभी चेंज नहीं होगी? Yes, Preeti Mataji, you want to say what is our fundamental identity? Preeti Nair Mataji, you want to speak? No, you have to unmute yourself if you want to, if you are speaking. I don't know if you can hear me. Okay, let's hear from Nidhi Gupta Mataji. Nidhi Gupta Mataji, what is our fundamental identity? Please unmute. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, fundamental identity is that we are servants. We are servant of God. Okay, and we are soul. We are the soul. Yes. The fundamental, ये कभी चेंज होगा क्या? ये कभी चेंज होगा? कभी ये चेंज होगा किसी के लिए? शिल्पा माता जी, आपके लिए कभी चेंज होगा कि आज आप सोल हैं, कल नहीं होंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, no, it will not No. change. Right now, are you working? Yeah, I am a teacher. You are a teacher. After 70 years, will this identity change? Yeah, definitely. It will change. 70 years के means after, once you are 70 year, you will not be working. 60 year, you will not be working. So this identity will change, right? But our fundamental identity will not change. तो ज्यादातर हम लोग अपनी प्रेजेंट आइडेंटिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर आई एम नाउ इंडियन, करेक्ट? दैट इज ऑल्सो माई प्रेजेंट आइडेंटिटी। अभी तो हम इसी बॉडी की बात कर रहे हैं। जैसे बॉडी चेंज होगी, हमारी ये सारी जो फंक्शनल आइडेंटिटियां चेंज हो जाएंगी ना। मैं इंडियन, हो सकता है मैं इंडियन ही नहीं रहूं, हो सकता है मैं मेल भी ना रहूं, हो सकता है मैं ह्यूमन बीइंग भी ना रहूं। ये सारी आइडेंटिटीज चेंज हो जाएंगी, लेकिन एक आइडेंटिटी सेम रहेगी, and that identity is I am the soul. तो भगवान अर्जुन को
ताकि अर्जुन अपनी सही ड्यूटी को समझ पाए। उनको उनकी फंडामेंटल आइडेंटिटी समझा रहे हैं। तो अगर एक शब्द में बोला जाए कि अभी तक हमने भगवत गीता के चैप्टर 2 में क्या किया है, अभी तक हमने भगवत गीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट अगर हम, तो भगवान क्या कर रहे हैं, पहले अर्जुन की बात सुन रहे हैं। जब अर्जुन कंफ्यूज्ड है, सरेंडर करते हैं अपने आप को, कौन से श्लोक में सरेंडर करते हैं सबसे पहले, कब बताते हैं अर्जुन, कौन बताएगा, किसी को याद है वो श्लोक? आप लोग होमवर्क शायद थोड़ा सा कम करते हैं मुझे लग रहा है ना? किसी ने कोई श्लोक याद किया है? वो श्लोक शिष्य, यस रेणु माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. कार्पण्य दोषम संप्रतित। हाँ प्रभु जी हाँ, वही वाला। यस यस यस, वही वाला। तो पूरा श्लोक याद है? प्रभु जी याद दोषो सुना नहीं पाऊंगी, पहत, सॉरी प्रभु जी। कोई बात नहीं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो पहले तो अर्जुन अपनी बात बताते जा रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। जैसे ही अर्जुन अपने आप को सरेंडर करते हैं तो भगवान समझते हैं कि अर्जुन को प्रॉब्लम क्या है। अर्जुन का असली प्रॉब्लम है कि अपनी ड्यूटी को नहीं समझ पा रहे। ड्यूटी क्यों नहीं समझ पा रहे? इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि उनको अपनी असली आइडेंटिटी समझ नहीं आ रही। वो अपनी टेम्परेरी आइडेंटिटी से अपने आप को समझ रहे हैं। और अब मैं उनको समझाता हूं कि अर्जुन, यू आर नॉट दिस 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 दैट, यू आर एक्चुअली ए सोल। भगवान अर्जुन को जब उनकी आइडेंटिटी समझा देते हैं आज, फिर आइडेंटिटी के बाद फिर आगे कॉन्टेक्स्ट में चलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो भगवान काफी सारे श्लोकों में अर्जुन को कई सारे एग्जाम्पल देके, जैसे मैं आपको भी एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, ऐसे भगवान अर्जुन को बहुत सारे एग्जाम्पल देके कि ऐसे जैसे बॉडी ग्रो होती है, एक कपड़े का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को मदद कर रहे हैं। एज ए एक्सपर्ट टीचर, कृष्णा इज हेल्पिंग अर्जुना टू अंडरस्टैंड हिज आइडेंटिटी। और भगवान इस दौरान जो सोल है उसको बहुत डीपली डिफाइन करते हैं, है ना? और भगवान इस सोल की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं पिछले श्लोकों में। श्लोक नंबर आई थिंक 12 से लेकर के हमने आई थिंक वी कवर टिल 30th, राइट। तो यस, 30th श्लोक तक भगवत गीता के 12 सेकंड चैप्टर के 12 से 30 श्लोक तक भगवान जो है इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सोल की बताते हैं। इटर्नल, कैन नॉट बी चेंज, इंडिस्ट्रक्टिबल, इम्पेरिशेबल, इमेजरेबल, लाइक दैट, immovable, invisible, inconceivable, amazing, immutable, primeval, ever existing, unborn, like that. So Krishna helps Arjuna, भगवान अर्जुन को मदद कर रहे हैं ये समझने के लिए। इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा। इसमें आपको सोल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? हमारी हैं, किसी और के पड़ोसी की नहीं है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। We are indestructible, we are immutable, we are this, we are that. So these are all the characteristics of ourselves. You understand this point? In this way, Krishna helps Arjuna to understand his real identity, soul, और फिर सोल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि अर्जुन, क्योंकि आप सोल हो, आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Okay, so now let's move little ahead. Today's section we will be focusing on verse 31 to 38. आज के सेक्शन में हम वर्स 31 से 38 को पढ़ेंगे। और इसमें जो है अर्जुन को जो भगवान फाइटिंग के लिए इंस्पिरेशन दे रहे हैं, है ना? और अर्जुन को उसकी ड्यूटी का बोध करा रहे हैं। उनकी जो ड्यूटी है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध करा रहे हैं, राइट? इफ अर्जुन डाइज इन द बैटलफील्ड, ही विल बी प्रमोटेड टू हेवन, एंड इफ ही विंस द बैटल, ही विल रूल द अर्थ। डिसऑनर विल ओवरकम हिम इफ ही लीव्स द बैटलफील्ड। तो हम लोग टेक्स्ट 31 से शुरू करते हैं, ओके? एंड टेक्स्ट 31 इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको मार्क कर सकते हैं। टेक्स्ट 31 का जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, मैं उसको डिस्प्ले भी करता हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और टेक्स्ट 31 में ही एक्चुअली ये सारे श्लोकों का एक तरह से समरी भगवान ऑलरेडी दे रहे हैं। 31 से 38 का समरी
31 में ही आएगा. I am sharing it on the. आपको मिल गया? Everyone is having the Bhagavad Gita. आप सबने ओपन कर लिया अपना बुक? Have you all opened your Bhagavad Gita books? Can some of you show your books to me, please? I'm sorry for asking. Okay, some devotees are sharing. Okay, very nice. Thank you so much. तो अब हम चलते हैं टेक्स्ट 31 पे. 31 टेक्स्ट में हम इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं. स्वधर्मम, one's own religious principles. Api also, cha, indeed, aveksha, considering, na, never, vikampitum, to hesitate, arhasi, you deserve, dharmayat, for religious principles, he indeed, yuddhat, that, then fighting, shreya, better engagement, anyat, any other, kis kshatriyasya, of the kshatriya, na, does not, vidyate, exist. So Lord Krishna is further instructing Arjuna. अभी तक सोल का टॉपिक चल रहा था, अब भगवान टॉपिक शिफ्ट कर रहे हैं. 31 से 38 श्लोकों में भगवान उनको फाइटिंग का जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में आज बताएंगे. Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know there is no better engagement for you than fighting on religious principle. So there is no need for hesitation. It's an interesting text. I would request some of you to read it. आप में किसी के पास हिंदी में पुस्तक है भगवत गीता का? Please raise your hand. Who has a good internet as well? Because we need to. Okay, let's hear from Saket Prabhu then. Saket Prabhu, you have a Hindi book? One moment, I'll unmute you. जी प्रभु जी. यस प्रभु, प्लीज आप इस का ट्रांसलेशन और पूरा परपोर्ट पढ़ सकते हैं. तात्पर्य बहुत ध्यान से सुनेगा. ये श्लोक पढ़ने से 90 डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे आपको. ठीक है, इसको पढ़ते हैं. प्रभु, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है. अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है. तात्पर्य, सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है. छत का अर्थ है चोट खाया हुआ. जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है. त्रायते, रक्षा प्रदान करना. क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है. क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था. शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी. आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा उस प्रथा का पालन करते हैं. क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है क्योंकि कभी-कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है. इसलिए क्षत्रियों को सीधा संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है. राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही. धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है. तो ये श्लोक पढ़ना है. You can skip that. It may be difficult. Yeah. युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्चलोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञानिक में मारे गए पशुओं को होती है. अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है. इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय
यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। प्रभु, we can take a pause here. I will try to discuss from this section. तो इस श्लोक को हम दो सेक्शन में डिस्कस करते हैं। अभी तक के सेक्शन में, थैंक यू साकेत प्रभु, वेरी नाइसली रेड। अभी तक के सेक्शन में भगवान क्षत्रिय के ड्यूटी को बता रहे हैं। जैसे उनको बता रहे अर्जुन को कि कंसीडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज ए क्षत्रिय, यू शुड नो that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, so there is no need of hesitation. और फिर यहाँ पे क्षत्रिय का जो वारफेयर में, यानी कि जो युद्ध में इन्वॉल्वमेंट है, वो उसका राइटियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय का जो ड्यूटी है, तो हमारा वो जो वर्णाश्रम है उसमें 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। कौन कौन से 4 वर्ण है, कोई बताएगा? What are the 4 varnas? Who wants to say? 4 वर्ण कौन से हैं? Yes, वरुण प्रभु। What are वरुण पाठक प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, वेरी नाइस। तो हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और what? There are also 4 ashrams. There are 4 ashrams. What are those 4 ashrams? आश्रम कौन से हैं? 4 आश्रम। यस अनिल प्रभु, 4 आश्रम। आपका आवाज नहीं आ रहा है, सॉरी अनिल प्रभु। ओके, दुष्यंत प्रभु, 4 आश्रम कौन से हैं? छात्र धर्म 25 साल तक, और फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, और एक चौथा वो क्या बोलते हैं, मृत्यु लोक को जाना, संन्यास। तो 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम है हमारे, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम। और 4 वर्ण कौन से हैं, जो अभी हमने चर्चा किया, हाँ, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आश्रम और वर्ण दोनों में अलग अलग उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों के नेचर के हिसाब से, जैसे भगवान बताते हैं भगवत गीता में आगे जाके, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो उनके गुणों और उनकी एक्टिविटीज के आधार पर गुण कर्म विभागशः डिवाइड किया है, और इन चारों की प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं। तो क्षत्रियों की जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो क्या है? क्षत्र, यहाँ पे जैसे डिफाइन किया गया है कि क्षत मीन्स हर्ट। तो क्षत्रिय जो है, जो रक्षा करता है ना, पूरे समाज का रक्षा करता है। तो इसीलिए बताया कि क्षत्रिय राजाओं को, पुराने समय में क्षत्रिय राजा क्या करते थे कि वो जाके शेर से अपने तलवार लेके फाइटिंग करते थे, वो ट्रेन होते थे। क्षत्रिय राजाओं को एनिमल किलिंग अलाउ होता था। हालांकि एनिमल किलिंग एक बहुत बड़ा वायलेंस है। अगर हम जाके एनिमल किलिंग करेंगे तो उसका जो कार्मिक रिएक्शन है इतना हैवी होगा कि वी विल बी ओवरबर्डन्ड बाय दैट कार्मिक रिएक्शन, अगर हम किसी पशु का हत्या करते हैं। लेकिन क्योंकि क्षत्रिय का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी प्रजा को रक्षा करने के लिए, इसलिए उसको वो वॉरफेयर में ट्रेन होने के लिए उसको शेर के साथ फाइटिंग करता था, अलग अलग पशुओं के साथ फाइटिंग करता था। और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि फिर उसको जो है रॉयल तरीके से उस का क्रीमेशन किया जाता था जिससे वो फाइटिंग करता था। तो यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, Kshatriyas are especially trained for challenging and killing because religious violence is sometimes a necessary factor. तो violence जो है वो हर समय खराब नहीं होता है। Religious violence is sometimes a necessary factor. Therefore, Kshatriyas are never meant for accepting directly the order of sannyas or renunciation. Non-violence in politics may be diplomacy, but it is never a factor or principle. In the religious law book, it is stated that a king or Kshatriya, while fighting another king envious of him, is eligible for achieving heavenly planets.
after death, as the Brahmanas attain heavenly planets by sacrificing animal in the sacrificial fire. तो बता रहे कि जैसे ब्राह्मण अपनी ड्यूटीज को पूरा करके, ब्राह्मण का जो पठन पाठन यजन याचन दान प्रतिग्रह, ये ड्यूटीज को पूरा करके जैसे एक ब्राह्मण हायर प्लैनेट्स में प्रवेश करता है ना, एक ब्राह्मण का एलिवेशन होता है, उसी तरह क्षत्रिय अपनी फाइटिंग की ड्यूटी को पूरा करके वो क्या करता है, वो आगे बढ़ता है। और यहाँ पे बता रहे कि अगर ऐसे रिलीजियस ट्रेनिंग में, ऐसे रिलीजियस सेक्रीफाइस में अगर किसी पशु का हत्या होता है तो वो पशु को क्या होता है, इमीडिएटली क्या होता है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलता है। हमारे वैदिक इंजंक्शंस बताते हैं कि यदि किसी पशु को सेक्रीफाइस किया जाता है, जैसे कि यज्ञ में उसका बलि चढ़ाया जाता है, तो वो पशु को क्या मिलता है, नेक्स्ट इमीडिएटली ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में प्रवेश करता है। वैसे उसका क्या होना था, अगर जो पशु है वो थोड़े से बेहतर पशु योनि में जन्म लेता है, फिर और बेहतर पशु योनि में, क्योंकि जो पशु योनि है वो कर्म योनि नहीं है, वो वहां पे वो कर्म करके अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकता है। पशु को तो वेट करना पड़ेगा इवोल्यूशन साइकिल का। अगर आज कोई चूहा है तो हो सकता है अगले जन्म में बड़ा चूहा बन जाए, फिर अगले जन्म में थोड़ा और बड़ा, फिर शायद बिल्ली बन जाए। ऐसे करते करते इवोल्यूशन, नेचुरल इवोल्यूशन होते होते वो एक दिन मनुष्य बनने के लेवल तक पहुंचता है, बहुत सारी योनियों के बाद। लेकिन अगर किसी पशु को यज्ञ में सेक्रीफाइस किया जाता है तो वो पशु इमीडिएटली ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का बर्थ वो लेता है। लेकिन इसके लिए बहुत ही हाई क्वालिफाइड ब्राह्मण चाहिए जो प्योरली वैदिक मंत्रों को उच्चारण करें, उनकी प्योर लाइफ। हमारे हिंदू समाज में खास तौर से ऐसा, हिंदू जिसको बोलते हैं, जो सनातन धर्म में भी कई लोगों ने ये पशुओं की हत्या करने को क्या बना लिया, उसको एक बहाना बना लिया कि हम क्या कर रहे हैं जी, बलि दे रहे। वो लोग ना तो क्वालिफाइड है, ना उनके अंदर कुछ ब्राह्मणिकल क्वालिटी है। ब्राह्मण केवल एक जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, या फिर उनके पिता एक ब्राह्मण परिवार का सरनेम है तो वो भी ब्राह्मण, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि वैदिक नॉलेज के कुछ ऐसे सेक्शंस को उठाया जहां पे एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में बताया है, और उसको यूज करने लगे किसके लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, कि मुझे मीट खाना है तो एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं, राइट। तो ये उन लोगों की बात नहीं होगी। अगर कोई बहुत क्वालिफाइड ब्राह्मण है तो जैसे ही कोई पशु को वो सेक्रीफाइस में डालता है, एनिमल को सेक्रीफाइस करता है, वो पशु जो है तुरंत ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में अपना नेक्स्ट बर्थ ले लेता है। तो लोगों ने वैदिक लिटरेचर्स का फायदा उठाया, इसलिए इतना जो बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगा, और उस वायलेंस को चलते मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में बताया था, फिर गौतम बुद्ध जो है वो प्रकट हुए, उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का शिक्षा दिया। और गौतम बुद्ध भी भगवान के अवतार हैं। भगवान के जो 10 अवतार हैं, 10 अवतार, उस 10 जो भगवान के प्रमुख अवतार हैं भगवान कृष्ण के, उसी में एक अवतार गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध का अवतार माना गया है। और उन्होंने क्या किया, आकर के सारे वैदिक लिटरेचर को रिजेक्ट कर दिया। सारे वैदिक लिटरेचर्स को रिजेक्ट करके उन्होंने किस लिए रिजेक्ट करा, वैदिक लिटरेचर्स परफेक्ट हैं, लेकिन क्योंकि वैदिक लिटरेचर्स का मिसयूज हो रहा था, तो इसलिए कि लोग वैदिक लिटरेचर से ज्यादा आकर्षित ना हो और उसका मिसयूज ना करें, उन्होंने वैदिक नॉलेज को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने एक नया प्रिंसिपल एस्टेब्लिश कर दिया, अहिंसा परमो धर्म फॉर द टाइम बीइंग। और फिर बुद्ध के ऐसा करने के बाद शंकराचार्य जो है उन्होंने आके फिर से वैदिक फिलॉसफी को एस्टेब्लिश किया, लेकिन मायावाद फिलॉसफी के साथ। मायावाद जिसमें कि कहते हैं कि हम भगवान हैं, आप भगवान हैं, सब भगवान है, दैट इज कॉल्ड मायावाद। और फिर शंकराचार्य के बाद जो एक्चुअल ये जो प्योर डिवोशन का जो कल्ट स्टैब्लिश हुआ, वो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इन लोगों ने फिर से, जिसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इन्होंने दोबारा से इस कल्चर को स्टैब्लिश किया। तो यहाँ पे हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्षत्रिय की ड्यूटी की बात आ रही है। तो क्षत्रिय अगर कोई वायलेंस करता है तो वो वायलेंस जो है वो उसके वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से है।
उसका जो धर्म है, क्योंकि क्षत्रिय को फाइटिंग के लिए तैयार होना है, उसको वो ट्रेनिंग लेना है, कैसे अटैक करना है, कैसे वो करना है। इसलिए आप सुनते हैं कि महाराज दशरथ ने भी जो वो तीर चलाते थे, और वो तीर जब उन्होंने चलाया तो सुन के क्षत्रिय अपने आप को इतना स्ट्रांगली ट्रेन करता है कि किसी भी बैटल फील्ड में वो कॉन्कर कर पाए अपने शत्रु को। तो वो तीर जो है लगा और फिर उनको श्राप मिला, और वो सब आप जानते हैं जो कथा हुआ, करेक्ट। तो यहाँ पर बता रहे कि क्षत्रिय का ये ड्यूटी है। अब अगले पैराग्राफ में बड़ा इंपॉर्टेंट इसी को फर्दर एक्सप्लेन किया कि 2 तरह के धर्म हैं। यस साकेत प्रभु, यू आर रीडिंग राइट। तो अभी तक सिर्फ एक क्षत्रिय की ड्यूटी के बारे में बताया, अब हम समझते हैं स्वधर्म। 2 तरह के स्वधर्म यहाँ पे बताए गए हैं। यस साकेत प्रभु, कंटिन्यू प्लीज। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों या क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। वेरी नाइस। तो यहाँ पे एक बड़ा सुंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया इस पैराग्राफ में स्वधर्म के बारे में। तो जैसे बताया है कि एक जीव की 2 स्थिति हैं। कंडीशन स्टेट, जैसे कि अभी हम लोग कौन सी स्टेट में है? कंडीशन स्टेट में। कंडीशन स्टेट मतलब क्या है? जब हम तीनों गुणों के प्रभाव से, जब हम पूरी तरह से प्योर शुद्ध भक्त नहीं हैं, जब तक हम पूरी तरह से भगवान के प्रति शरणागत भक्त नहीं हैं, हम कंडीशन स्टेट में हैं, बद्ध अवस्था में हैं, तीनों गुणों के प्रभाव में हैं, उस समय तक हमें अपनी जो स्पेसिफिक ड्यूटीज है, वो वर्णाश्रम की जो ड्यूटीज हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए। जब तक हम इस बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में हैं, जैसे कि वो कौन सी ड्यूटीज हैं? जैसे कि एक पिता की ड्यूटी, एक पति की ड्यूटी, जब जो पूर्वज हैं उनका देहांत हो जाए तो उनको जो पितरियों के लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं, ये सब जो ड्यूटीज हैं, ये सब ड्यूटी किससे संबंधित हैं? ये सारी ड्यूटी वर्णाश्रम से संबंधित है। और ये वर्णाश्रम होता क्यों है? ये वर्णाश्रम इसलिए होता है कि जीव जो है अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करता हुआ ग्रेजुअली अपलिफ्ट होता है, ग्रेजुअली उसका जो है अपलिफ्टमेंट होता है उसकी कॉन्शियसनेस का। जो वर्णाश्रम धर्म है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत है। ये लोअर लेवल है, सबसे लोएस्ट लेवल। इससे नीचे जो है एनिमल सिविलाइजेशन। तो अगर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म को फॉलो ही नहीं कर रहा है ना, तो जैसे बताते हैं ना, धर्मे विहीन पशु भी समान। धर्म के बिना जो है हमारी रिलीजियस ड्यूटीज के बिना जो जीवन वो कैसा होता है? इट इज लाइक ए एनिमल। तो वर्णाश्रम धर्म और ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से हमारे लिए कुछ ड्यूटीज दिया गया है, जैसे कि 4 नियम दिए गए हैं। 4 नियम कौन कौन से बताए गए हैं? पहला, कोई भी व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग अपने आप को क्वालिफाई करना चाहता है कि यस आई एम ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, तो उसके लिए क्या नियम दिए गए हैं? नंबर 1, नो मीट फिश एग्स, किसी प्रकार का मीट अंडा ये सब खाना ये वर्जित है। दूसरा, नो गैम्बलिंग, किसी प्रकार का भी जुआ, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का भी नशा, और नो इलिसिट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। तो ये 4 तरह के जो ह्यूमन लाइफ के एक बेसिक स्टार्टिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। और जो एनिमल सिविलाइजेशन है उसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होते। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? देखिए, ह्यूमन बीइंग्स का, जैसे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का
जो लक्ष्य है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उनका लक्ष्य बहुत हाई है। ये ह्यूमन लाइफ बहुत ही छोटा स्पैन का जीवन है, हमारे पास 60-70 साल है या इतना कुछ एज है। इस लाइफ में हमें अपने आप को इतना प्योरीफाई करना है कि हम दोबारा यहाँ पे जन्म ना लें, क्योंकि जितना बार भी यहाँ पे जन्म होगा उतना बार डेथ होगा, उतनी बार ओल्ड एज होगा, उतनी बार डिजीज होगा। तो ये ह्यूमन लाइफ जो है, राइट नाउ वी आर इन ए प्रिविलेज सिचुएशन, हमारे पास प्रिविलेज सिचुएशन है कि हमें ह्यूमन बर्थ मिला है। लेकिन हो सकता है ये प्रिविलेज हमारे पास हमेशा ना रहे। अगर हमारा जो एक्टिविटीज है वो ह्यूमन बींग्स के लाइक नहीं है तो डिग्रेड होके एनिमल फॉर्म ऑफ लाइफ में एक लिविंग एंटिटी जा सकता है। जैसे कि अगर कोई बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है तो नेक्स्ट लाइफ में वो हो सकता है स्नेक बॉडी ले ले। अगर कोई बहुत ज्यादा सोना चाहता है तो हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में वो पोलर बियर बन जाए, वहां पे सोता रहे, उसको कोई तंग नहीं करेगा, राइट। तो जैसा हमारा कॉन्शियसनेस है उसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट बॉडी रेडी होता है। इसलिए ह्यूमन लाइफ जो है बहुत ही ट्रांजिटरी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका लक्ष्य क्या है कि हमें इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो बार बार ये जन्म और मृत्यु का चक्कर है, ये कि केवल ह्यूमन लाइफ पे ही एक ट्रांजिटरी पॉइंट है हमारे पास। एनिमल लाइफ में हमें इससे बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं है। मैंने शायद एग्जांपल पहले भी दिया होगा कि जैसे एक पत्थर को अगर आप धागे से बांध के घुमाते जाएंगे तो घूमता जाएगा, हमेशा उस सर्कल में रहेगा। तो हमारा जो जीवन है वो ऐसा ही चल रहा है, बार बार हम अलग अलग योनियों में घूमते जा रहे हैं। लेकिन अगर उस एक ब्लेड से अगर उस घूमते हुए जो पत्थर जो घूम रहा है धागे से बंधा हुआ, उस धागे को हल्का सा कट कर दीजिए तो पत्थर जो है वो सीधा उस सर्कल से बाहर निकल जाएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल को अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है ऐसे ही इस सर्कल से बाहर निकलने का, जिसको मुक्ति या मोक्ष बोला जाता है। लेकिन वो कट कैसे होगा? जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियस बनाएंगे, जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करेंगे, जब हमारी कॉन्शियसनेस इतनी प्योर हो जाएगी तो हमें फिर दोबारा से इस मटेरियल बॉडी में जन्म लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर दो तरह के स्वधर्म बताए गए हैं। जब तक हम कंडीशन स्टेट में हैं तब तक हमें अपनी सारी ड्यूटीज को करना है। जो क्षत्रिय का ड्यूटी है, जो ब्राह्मण का ड्यूटी है, जो पुत्र का ड्यूटी है, जो पिता का ड्यूटी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस कंडीशन स्टेट से बाहर निकल जाता है, यानी कि लिबरेटेड स्टेट में आ जाता है, तब उसके लिए कोई भी ड्यूटीज अप्लाई नहीं होती है। तब वो क्या करता है? ही इज रिलीव फ्रॉम दीज ड्यूटीज बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग ए हायर ड्यूटी। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहां से पढ़ता हूं, एज लॉन्ग एज वन इज नॉट लिबरेटेड, जब तक कोई कंडीशन स्टेट में है, वन हैज टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी। तो अभी हम इस बॉडी रिलेशनशिप में हैं। ये जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये बॉडीली डेजिग्नेशंस, दे आर नॉट द डेजिग्नेशन ऑफ ए प्योर सोल। जो लिबरेटेड सोल है उसका एक ही डेजिग्नेशन है, कृष्णेर जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जो एक जीव जो लिबरेटेड सोल है वो केवल भगवान के सर्वेंट के रूप में अपने आप को देखता है। वो ना तो ब्रह्मचारी है, ना गृहस्थ है, ना वानप्रस्थ है, ना सन्यासी है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। सॉरी, ही इज नथिंग। चैतन्य महाप्रभु ये सब चीजों को कहते हैं ना 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 ना, नो, आई एम नॉट ए ब्राह्मण, नॉट ए क्षत्रिय, नॉट ए वैश्य, क्योंकि ये सारी जो ड्यूटीज हैं ये बॉडी से अटैच्ड है, इस बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, आई कैन but it is a very important topic to understand. It may take some time for us to understand, but it's a very important. तो दो तरह की ड्यूटी हैं। जब तक हम बद्ध अवस्था में हैं, इस बॉडी से रिलेटेड सारी ड्यूटीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है करना, और जब हम मुक्त अवस्था में आ जाएंगे तब फिर ये जो हमारा जो स्वधर्म है, देखिए यहाँ पे लिखा है, as long as one is not liberated, one has to perform the duties of his particular body in accordance with religious principles in order to achieve liberation. When one is liberated, one's sadharma, specific duty, becomes spiritual, and it is not in the material bodily concept. In the bodily concept of life,
There are specific duties of the Brahmanas and the Kshatriyas respectively, and such duties are unavoidable. तो अभी हम कौन सी अवस्था में हैं बताइए? अभी हम are you all here, Prabhus? Hari bol, quick check. कहीं ड्यूटीज में बहुत ज्यादा खो तो नहीं गए आप लोग? Soon we will come out of it, don't worry. आप लोग हैं यहाँ पे? Please wave your hand or say something. I have to check. Okay, somebody is raising his thumb, her thumb. Okay, good. So you are there. तो कई बार मैं इतना लंबा बोलता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि सब हैं क्या, चले गए यहाँ से, तो और लोग बिल्कुल स्टिल बैठते हैं एकदम पिक्चर की तरह, तो इसलिए दिखता नहीं है। तो सिंपल है, अब सारी चीजों को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है? इतनी सारी चीजें बताने के बाद अब सारी चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। वो सिंप्लीफाई हम कहाँ से करते हैं? ये एक आपको मैं टेबल दिख रहा है आपको? कैन यू सी प्रभुस एंड can you, I hope you are able to see my screen. If someone can confirm, Ravi Prabhu, can you confirm please if you can see? Yes, I can see. Okay, so यहाँ पे समझते हैं ध्यान से जो अभी बताया। एक मिनट, ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है स्वधर्मा, यानी कि स्पेसिफिक ड्यूटीज, ठीक है? ये हमारी स्पेसिफिक ड्यूटीज हैं। ये दो अलग अलग हेड्स में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये है कंडीशनल स्टेट, जो हमारा अभी का अवस्था है, अभी का अवस्था है कंडीशन स्टेट ऑफ लाइफ, कंडीशन स्टेट ऑफ लाइफ। और इधर हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे लिबरेटेड स्टेट, जो मुक्त अवस्था है, जब हम लोग तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम पहले बात करें कंडीशन स्टेट। तो कंडीशन स्टेट में हम वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं। वर्णाश्रम धर्म में हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, और ये जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है अगर हम इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो दीज आर लाइक स्टेपिंग स्टोन्स टू स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड टू अंडरस्टैंड आवर रियल स्पिरिचुअल ड्यूटी। ये सारी ड्यूटीज, ये सारे वर्णाश्रम धर्म हमारे बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ के ऊपर बना है, करेक्ट? और इसमें जैसे आपने देखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ब्राह्मण को जो मोड ऑफ गुडनेस में, इनको क्षत्रिय को पैशन में बताया गया है। क्षत्रिय का काम क्या है? फाइटिंग करना। ब्राह्मण का जो मोड है वो कोई गुडनेस का है, सतोगुण। क्षत्रिय का रजोगुण। वैश्य जो है रजोगुण और तमोगुण दोनों मिक्सचर है वैश्य में, और शूद्र जो है वो तमोगुण में। और इसके हिसाब से इनका ड्यूटी है। जो गुडनेस के लोग हैं उनका ड्यूटी है सेक्रीफाइस, यज्ञ, एजुकेशन, पठन पाठन, यजन याजन। जो क्षत्रिय है उसका, क्योंकि वो पैशनेट है, उसके अंदर रजोगुण है, इसका ड्यूटी क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। जो वैश्य है उनका ड्यूटी है बिजनेस क्लास, और शूद्र जो है वो सभी बाकी तीनों क्लास को क्या करता है? सर्व करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सर्विस करता है कौन? शूद्र, ठीक है? जब व्यक्ति साधारण अवस्था में इसको फॉलो करने से वो क्या करता है? ही इज एलिवेटेड टू हायर हेवनली प्लैनेट्स, और हायर प्लैनेट्स पे वो हायर कॉन्शियसनेस में प्रवेश करता है। और ऐसी अवस्था में, जब तक हम ऐसी अवस्था में हो तब तक हमें आर्टिफिशियली रिनाउंस नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियली मतलब कि हम हैं तो बद अवस्था में, लेकिन हम अगर एकदम से अपनी ड्यूटीज को त्याग देंगे तो हम क्या होगा? वो अच्छे हमारे लिए, तो हम लोग वी विल नॉट बी इन ए राइट सिचुएशन अगर हम आर्टिफिशियली अपनी चीजों को त्याग देंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है एकदम से उसको इमोशनली फील होता है कि मुझे जो ये धन से मुझे कोई अटैचमेंट नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और एकदम से सारा धन वो फेंक देता है जाके नदी में। वो बाद में कहता है अरे मैंने क्या किया, बाद में उसको लेमेंट करता है। तो आर्टिफिशियल लेवल पे हम इसको नहीं त्यागेंगे जब हमारा, तो ये तो इससे क्या हो रहा है? वर्णाश्रम ड्यूटीज से अलग अलग आश्रम के हिसाब से अलग अलग ड्यूटीज, इन ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करने से क्या होगा? वी विल बी मूविंग अप। और ये वर्णाश्रम ड्यूटी का गोल भी यही है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है वर्णाश्रम ड्यूटी का जो गोल क्या है कि हम लिबरेशन की ओर बढ़े, हम लिबरेशन की ओर आगे बढ़े। और जब हम लिबरेटेड स्टेज में हो जाएंगे
तो फिर कौन सा धर्म होगा? फिर हमारा वर्णाश्रम धर्म नहीं होगा, वहां पे होगा दैवी वर्णाश्रम धर्म। दैवी वर्णाश्रम धर्म मतलब नाउ इट्स स्पिरिचुअल, नाउ नथिंग इज रिलेटेड टू द बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। सो नाउ द बिग क्वेश्चन कम्स कि क्या यही एक रूट है कि स्वधर्म से वर्णाश्रम धर्म ड्यूटीज इनको करते करते फिर हम अपग्रेड होंगे और ये लिबरेशन, ये फिर हम जो है दैवी वर्णाश्रम? क्योंकि अगर हम यहाँ पे ही रह गए, सपोज हम यहीं पे रह गए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते करते हम यहीं पे ही रह गए, करेक्ट, तो ये हमें गारंटी नहीं देगा कि तो खाली अपने वर्णाश्रम धर्म को पालन करने से हम इस लाइफ के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमें तो इस अपने आप को इस बद्ध युग, जो हमारी बद्ध अवस्था है, उससे मुक्त अवस्था की ओर ले जाना पड़ेगा। बट द गुड न्यूज इज, अच्छा न्यूज क्या है कि ये जो हम चर्चा कर रहे थे, ये जो लिबरेटेड स्टेट है, इसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि हम ये सारे अपने ड्यूटीज को इस तरह से प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को पूरा करें। और वो भगवान अभी भगवत गीता में आगे चल के बताएंगे कि व्हाट इज द शॉर्टकट, व्हाट इज द शॉर्टकट। आगे जाके हम बहुत डिटेल में योगा लैडर की चर्चा करेंगे, अलग अलग योग जो पद्धति है उनकी चर्चा करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि जैसे कि आपको यहां से लेके 10वीं मंजिल पे ऊपर जाना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि सपोज 20वें फ्लोर पे आपका घर है, 20th फ्लोर पे, तो एक ऑप्शन है कि आप पहले फ्लोर 1 पे चढ़ोगे सीढ़ियों से, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते, राइट। दूसरा ऑप्शन है आपके पास लिफ्ट है, तो आप उस लिफ्ट से डायरेक्टली क्या करेंगे, सीधा 20th फ्लोर पे जा सकते। तो ऐसा प्रोसेस है, और वो प्रोसेस क्या है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा। वो हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे योगा लैडर का जब टॉपिक आएगा। बट जस्ट टू लेट यू नो राइट नाउ, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये तो लाइफ में पूरा होने वाला ही नहीं है, अभी अपनी ये ड्यूटीज, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को ही हम ठीक करते रहेंगे तो तो अभी के लिए हमें अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को अच्छे से करना है, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण शूद्र की ड्यूटीज को करना है, लेकिन एट द सेम टाइम भगवत गीता में ही हम इस फॉर्मूला को सीखेंगे जिससे हम ये सारी ड्यूटीज को क्या कर पाएंगे, ओवरकम। वो बाद में भगवान बताएंगे, लेकिन अभी के लिए अर्जुन को समझा रहे हैं क्योंकि क्या प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? वेरी इंटरेस्टिंग, लिटिल टफ टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तब हम आगे के श्लोकों को पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स, आज हम 38 तक कवर करेंगे। तो कैन आई रिक्वेस्ट समवन, शिल्पा माता जी, वुड यू लाइक टू रीड द नेक्स्ट फ्यू श्लोकास? तो मैं इंग्लिश में डिस्प्ले कर रहा हूँ, रीड इट इन हिंदी, उनका जो अनुवाद है। इज इट ओके फॉर यू शिल्पा माता जी? Sorry, okay. Please go ahead. So we can now read from text 32. हिंदी में करना है ना मुझे रीड? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। राइट, तो बस हम खाली अनुवाद ही पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ समझ आ रहा है। तो यहाँ बता रहे हैं स्वर्ग के द्वार क्यों खुल रहे हैं, क्योंकि अभी हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। स्वर्ग के द्वार इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि वो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय के लिए एक धर्म युद्ध जो है अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो धर्म युद्ध करने से वो अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है, और जैसे वो अपनी ड्यूटी को पूरा करेगा तो वो हायर प्लैनेट्स में वो पोजीशन ले पाएगा, ही कैन गो टू हायर प्लैनेट्स, करेक्ट। तो इसीलिए क्षत्रिय होकर एक धर्म युद्ध में लड़ पाना ये एक प्रिविलेज है, क्योंकि वहां से उसको हायर प्लैनेट्स जाने का रास्ता मिलेगा। वाई? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है। नेक्स्ट श्लोका प्लीज। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जितना भी इन श्लोकों में लिखा हुआ है सारा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं मोस्टली। यस प्लीज माता जी, आर यू देयर? यू आर ऑन म्यूट। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे।
राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो स्वधर्म है कंडीशन स्टेट में इसको फॉलो करना ये ऑप्शन नहीं है, दिस इज ए मैंडेटरी रूल। एक कंडीशन स्टेट में तो यहाँ अर्जुन को बता रहे कि अगर आप उसको करोगे तो आपको हायर प्लैनेट्स मिलेंगे, नहीं करोगे अपनी ड्यूटी को फेल करोगे, जैसे कि आप ऑफिस में अगर अच्छा काम करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, और अगर आप ऑफिस में जाके काम नहीं करोगे तो ऑफिस वाले आपको फुल एंड फाइनल समरी दे देंगे और कहेंगे कल से आपको नहीं आना। करेक्ट? तो दिस ड्यूटी इज रिवार्डिंग एज वेल एज देयर इज अ पनिशमेंट इफ यू डोंट डू दैट। अंडरस्टैंड दैट पॉइंट? नेक्स्ट, yes Mataji, you can go to the next text. लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। So here then Lord is telling Arjuna what will be the consequences अगर वो फाइटिंग नहीं करेंगे तो उसके क्या क्या consequences होंगे। Next please. जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। राइट, सो आप समझ पा रहे हैं, तो भगवान उनको कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं सारे। नेक्स्ट, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। राइट, ओके, गुड। नेक्स्ट, हे कुंती पुत्र, यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। थैंक यू। नेक्स्ट माताजी। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। वेरी नाइस, थैंक यू। तो ये जो इसको हम पढ़ेंगे माताजी, इसका परपोर्ट भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कंक्लूजन है हमारे आज के सेशन का। इसको समझना होगा कि यहाँ पर देखिए, थोड़ा मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पर अभी तक भगवान अर्जुन की जो स्वधर्म है, उनकी जो क्षत्रिय होने के नाते जो उनकी ड्यूटी है, एक रिलीजियस ड्यूटी है फाइटिंग करने का, वो अभी तक उनको प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन अब भगवान इस श्लोक में जो 38 श्लोक है, इसमें भगवान एक दूसरे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल को ला रहे हैं। और वो प्रिंसिपल क्या है कि फाइटिंग बिकॉज लॉर्ड वांट्स इट। आप उसकी चिंता मत कीजिए कि आपको लड़ाई से सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, या जीत हो रही है या हार हो रही है, या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, फाइट बिकॉज यू शुड फाइट। एंड व्हाई यू शुड फाइट? बिकॉज कृष्णा एज ए मास्टर and Krishna as the upholder of all the religious principle is instructing Arjuna to fight. तो इस परपोर्ट को पढ़ेंगे और हमें भी समझ आएगा कि what is the duty in Krishna consciousness. Yes माता जी, इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे प्लीज। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। वेरी नाइस, थैंक यू। तो यहाँ पर भगवान देखिए अर्जुन को ना
भगवत गीता में कई सारे एस्पेक्ट से चीजों को समझा रहे हैं। जैसे पहले सोल को काफी डिटेल में समझाया, अब भगवान अर्जुन को बेसिकली मदद करना चाहते हैं कि वो फाइटिंग करे, अर्जुन को ये डिसीजन लेने में मदद करना चाहते हैं। तो पहले तो भगवान अर्जुन को उनका स्वधर्म एज ए क्षत्रिय ड्यूटी की वजह से बता रहे हैं, और इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि बिकॉज कृष्णा डिजायर्स इट। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे, लॉर्ड कृष्णा नाउ डायरेक्टली सेज दैट अर्जुना शुड फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग बिकॉज ही डिजायर्स द बैटल, बिकॉज इट इज लॉर्ड्स डिजायर दैट दिस धर्म युद्ध शुड टेक प्लेस। बता रहे कि देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, प्रॉफिट और गेन, विक्ट्री और डिफीट इन द एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा कॉन्स। जब हम भक्तिमय, तो अब यहाँ पे स्वधर्म, ये जो अभी तक रिलीजियस ड्यूटी चल रहा था उसको भगवान ने अब खत्म कर दिया कि आपको ये पहले तो बताया आपको पुण्य मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, नहीं तो नहीं करोगे तो अपयश मिलेगा, लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, आपका क्षत्रिय होने का ड्यूटी। लेकिन अब भगवान ने, तो ये भगवत गीता में भगवान ने अलग अलग चीजों को समझाया है, और यहाँ पे भगवान फिर उसको बाद में भगवत गीता के कंक्लूजन में लास्ट में बताएंगे, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वहां पे फिर भगवान बताएंगे कि अल्टीमेट क्या ड्यूटी है हमारा, अल्टीमेट हमारा धर्म है भगवान को शरणागत करना। लेकिन अभी भगवान उसको स्टेप बाय स्टेप अर्जुन को वहां पे लेके आ रहे हैं। तो पहले उनकी रिलीजियस ड्यूटी बताई कि एज ए क्षत्रिय भी आपको फाइट करना चाहिए। पहली बात तो एज ए क्षत्रिय जो आपका रिलीजियस ड्यूटी है आपको फाइट करना चाहिए। जो आपका रिलीजियस धर्म है वो आपके कुल धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक भगवान उसको ये बता रहे हैं अर्जुन को, और अब भगवान बता रहे हैं कि उनको भगवान के लिए फाइट करना चाहिए बिकॉज ही वॉन्ट्स इट, ही डिजायर्स द बैटल, देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। और जब ऐसा कोई कार्य हो जिसमें हमें पता हो कि दिस इज फॉर द लॉर्ड, फिर उसमें दुख सुख हानि लाभ इसका कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग शुड बी परफॉर्म्ड फॉर द सेक ऑफ कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। लेकिन ये कौन सी कॉन्शियसनेस की बात हो रही है? ये वो वाली बद अवस्था की बात नहीं हो रही। कौन सी बात हो रही है? अब ये ट्रांसीडेंटल, ट्रांसीडेंटल मतलब जब तीनों गुणों के प्रभाव को हम पार कर जाते हैं, वो जो चेतना है वो है, उस चेतना में व्यक्ति जो है क्या करता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्टेट में होता है। जब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जैसे हमने देखा ब्राह्मण सतोगुण से प्रभावित हैं, क्षत्रिय जो है वो रजोगुण से प्रभावित हैं, वैश्य जो है वैश्य जो है रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है, और जो शूद्र है वो तमोगुण से प्रभावित है। लेकिन एक जो भक्त है, जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है, वो इन तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर है। और वो ऐसी अवस्था में फिर यहाँ पे बताते हैं everything should be performed for the sake of Krishna in transcendental consciousness, so there is no reaction to the material activities। तो material activities का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर पुण्य भी मिलेगा, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। आज बस एक पॉइंट लास्ट ये समझ लेते हैं और फिर हम वाइंड अप करते हैं। ये पॉइंट लास्ट समझ लीजिए कि अभी तक जितना भी ड्यूटीज के बारे में हमने बात किया है कि जो उसका रिलीजियस ड्यूटी है, उसका कुल धर्म है, अलग अलग तरह के ड्यूटी है, वर्णाश्रम ड्यूटी है, ये सारे जीव के लिए, जीव को एलिवेट तो करते हैं, हायर प्लैनेट्स में एलिवेट तो करते हैं। एक तरह से पुण्य, इस जो पुण्य कर्म है इसका जो रिएक्शन है वो हायर प्लैनेट्स है, इन मोर एंजॉयबल लाइफ है। लेकिन ये पुण्य कर्म भी जो है वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है। पुण्य कर्म करके भी, इसलिए पुण्य कर्म क्यों बाइंडिंग होता है? क्योंकि पुण्य कर्म के बाद हमें उसको एंजॉय करने के लिए, उस जो कर्म का जो रिएक्शन है, क्योंकि जब आप पुण्य कर्म करेंगे उसका रिएक्शन मिलेगा, उसको रिएक्शन को एंजॉय करने के लिए आपको फिर एक बॉडी लेना पड़ेगा। फिर उस बॉडी में आते ही फिर पुण्य पाप फिर से करेंगे, पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप, और फिर दोबारा आपने वो सेशन अटेंड किया था लॉ ऑफ कर्मा, राइट? इफ यू रिमेंबर कि कर्म के लॉ में -100 + 100 इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसलिए जितना पुण्य और पाप इस बॉडी के, इस जीवन के एंड में बचेगा, अगला लाइफ वहीं से शुरू होगा, पुण्य और पाप से। तो इसलिए अगर हमारे पास पुण्य कर्म भी हो रहा है तो पुण्य कर्म इज ऑल्सो नॉट गुड अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता। पुण्य कर्म सबसे अच्छा नहीं है, पाप कर्म से तो अच्छा है, लेकिन पुण्य कर्म से भी अच्छा है एक चीज और है, और वो कौन सा कर्म है? दैट इज अ कर्म विच इज
फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। जो कर्म हम भगवान के लिए करते हैं वो ना तो पुण्य होता है, ना ही उसमें किसी तरह का पाप होता है, वो भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। और क्योंकि वो उसमें ना तो पुण्य है ना पाप है, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। और जब उसका रिएक्शन नहीं होता है तो उसके रिएक्शन को एंजॉय करने के लिए या सफर करने के लिए हमें दोबारा बर्थ नहीं लेना पड़ता, और इस अवस्था को बोलते हैं मोक्ष। तब हम इस लाइफ के बर्थ और डेथ के साइकिल से क्या कर पाते हैं, बाहर निकल पाते हैं। जब हमारे पास कोई रिजल्टेंट रिएक्शन नहीं होगा तभी हम फ्री हो पाएंगे। जब तक कोई रिजल्टेंट रिएक्शन है तब तक हमें उसको एंजॉय या सफर करना पड़ेगा। जो एंजॉय करने वाला है उसको एंजॉय करना पड़ेगा, सफर करने वाले को सफर करना पड़ेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो इसको कौन सी अवस्था बोलते हैं, ये है ट्रांसीडेंटल कॉन्शियसनेस, यानी कि तीनों गुणों के प्रभाव से अतीत, उसके वो इन तीनों को ट्रांसेंड कर रहा है, तीनों गुणों को। और एक भक्त जो है भगवान के लिए जब कार्य करता है तो वो क्या है, ट्रांसडेंटल। अब लास्ट लाइन इस पैराग्राफ का जो हमने पढ़ा, एनीवन हु हैज कंप्लीटली सरेंडर्ड टू कृष्णा मुकुंदा, गिविंग अप ऑल अदर ड्यूटीज, इज नो लॉन्गर ए डेप्टर नॉर ही इज ऑब्लाइज्ड टू एनीवन। तो अभी तक हमने सारी ड्यूटीज में ये समझा कि उसका ऑब्लिगेशन है, अपना धर्म का ड्यूटी है, ब्राह्मण को अपना धर्म करना है, क्षत्रिय को अपना करना है, वैश्य को, यही सुना ना। लेकिन अभी यहां पर क्या समझ रहे हैं, इस सबसे हायर ये सारी कौन सी ड्यूटीज हैं, ये बद्ध अवस्था में थी। लेकिन जो मुक्त अवस्था में कौन सी ड्यूटी है, जब एक व्यक्ति पूरी तरह भगवान को शरणागत, लास्ट पैराग्राफ इसका पढ़िए जो हम श्लोक पढ़े 38 का, एनीवन हु हैज कंप्लीटली सरेंडर्ड टू कृष्णा मुकुंदा, गिविंग अप ऑल अदर ड्यूटीज, इज नो लॉन्गर a debtor, nor is he obliged to anyone, nor demigods, nor the sages, nor the people in general, nor kinsmen, ना तो परिवार वालों के लिए, ना समाज के लिए, ना फोर फादर्स के लिए, ना जो पितृगण है हमारे, ना उनके लिए, किसी के प्रति भी कोई उसका ऑब्लिगेशन ही नहीं रह जाता। जैसे अभी हमारा ऑब्लिगेशन है, अभी हम बद्ध अवस्था में, लेकिन हम अगर इस बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था में आ जाए, और वो मुक्त अवस्था में कैसे आएंगे, बाय द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, फिर हमारी ये सारी ड्यूटीज क्या है वो खत्म हो जाएंगी। सो दैट इज द इनडायरेक्ट हिंट गिवन बाय लॉर्ड टू अर्जुना इन दिस वर्स, एंड द मैटर विल बी मोर क्लियरली एक्सप्लेन्ड। सो दैट इज द एसेंस। तो हम इस सारे जो अभी डिस्कस किए श्लोकों को एक साथ में एक चार्ट में देखते हैं। आई होप मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। सो हियर अगर हमने श्लोक 32 से शुरू किया था, 31 में हमने पहले बेसिक चीज देखा, तो क्षत्रिय जो है ही मस्ट बी वायलेंट, क्योंकि वो प्रोटेक्शन करेगा समाज का, दैट इज हिज ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी है, उसकी बद्ध अवस्था में जो ड्यूटी है। और अगर वो उस ड्यूटी को करता हुआ मृत्यु हो गई उसकी अपनी ड्यूटी को करते हुए, तो क्या होगा, एलिवेशन टू हायर प्लैनेट्स। वो हायर प्लैनेट्स यानी कि पुण्य होगा। ये रिलीजियस बैटल में उसका जो फाइटिंग करना, वो एलिवेशन टू हायर प्लैनेट्स। और वो क्या होगा, अगर यहीं पे भी जो जीत जाता है, अगर वो युद्ध को जीतता है तो एंजॉय करेगा अर्थली प्लैनेट्स को, और मरेगा तो हेवनली प्लैनेट्स में जाएगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो फिर क्या होगा, जैसे हमने श्लोकों में देखा, ही विल इनकर सिन फॉर निग्लेक्टिंग हिज ड्यूटी, ही विल लूज हिज रेपुटेशन, जिससे कि इनफेमी होगी, उसका डिसऑनर होगा, राइट। और जो अलग अलग जनरल्स हैं वो उनको क्या समझेंगे कि अर्जुना एक कायर है, और उनको इनसिग्निफिकेंट समझेंगे। और जो एनिमीज हैं वो भी क्या करेंगे, दे विल यूज अनकाइंड वर्ड एंड दिस विल बी वेरी पेनफुल। दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग इन ऑल दीज वर्सेस। ये हमने सारे वर्सेस को यहाँ पे प्लॉट किया है, राइट। इसीलिए ये सब को देखते हुए भगवान उनको क्या जजमेंट दे रहे हैं कि अगर आप जो मृत्यु हो गई तो आप हायर प्लैनेट्स में जाओगे, मृत्यु नहीं होगी तो अगर आप जीतोगे तो आप एंजॉय करोगे यहाँ पे, इसलिए आप युद्ध कीजिए। ये सारा कुछ कहने के बाद उसकी जो टेम्परेरी या फिर जो उसकी रिलीजियस ड्यूटी समझाने के बाद अर्जुन को अब भगवान क्या कह रहे हैं कि नाउ यू, ये तो एक लेवल था। अब दूसरे लेवल पे भगवान क्या कह रहे हैं, फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, बिकॉज लॉर्ड वांट्स हिम टू फाइट। और जब ये करेंगे, जब हमें लॉस और गेन, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, विक्ट्री और डिफीट का कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा, सो देन यू विल नेवर इनकर सिन। आप भगवान को उससे क्या कर पाएंगे, प्रसन्न कर पाएंगे। देयर विल बी नो पुण्य, देयर विल बी, ही विल बी
he will be situated in the transcendental consciousness. Understand? So it's a little tough, क्योंकि अलग अलग ड्यूटीज के बीच में थोड़ा सा फाइटिंग है, इसलिए अर्जुन के लिए भी ये टफ है बहुत टॉपिक, हमारे लिए भी थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि अर्जुन को यही तो सबसे बड़ा टफ है कि ड्यूटीज के बीच में जो मतभेद है अलग अलग ड्यूटीज को उसको समझ, तो इसलिए भगवान उसको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं और हम भी इस तरह से समझ सकते हैं. सो दैट वाज सम एंड सब्सटेंस ऑफ टुडेज section. We will be covering it. We will be covering next time a very important section. We will be covering next time from text 39 to text 53 अगली बार. और अगले सेक्शन में 3-4 ऐसे श्लोक हैं जो इनको हमें याद करना है. आई डोंट नो आप में से कोई श्लोक याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. इस क्लास के बाद आप पढ़ते हैं क्या इसको कभी? मुझे पता नहीं, या बस ऑन कर देते हैं जूम, चलो प्रभु जी बोलते रहो, थोड़ा देर वीडियो ऑन कर लेंगे. आप में से कोई पढ़ता है? ओके. श्री नलिनी जी, आप कुछ पढ़ते हैं? आपने हैंड रेस किया, कुछ बताना चाहते हैं? प्लीज स्पीक आउट समथिंग. हरिओम स्वामी जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस यस प्रभु. प्रभु जी मैं तो रोज पढ़ता हूँ. ओके ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. तो आप सब पढ़ रहे हैं. आप में से किसी को वो श्लोक याद हुआ? वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय. मैं आपको पहले आपके हैंड्स को लोअर करता हूँ, अब रेज कीजिए. किसी को याद है? कोई बताना चाहेगा वो श्लोक? हर्ष प्रभु ने बस हैंड रेज किया. श्रीनिल, वही 2-3 लोग हैंड रेज करते हैं, बाकी सब कहाँ हैं? देख के ही बताइए. चलिए, लोग ढूंढ रहे हैं भगवत गीता. ओके, चलिए ढूंढ के ही बताइए. कोई पढ़ के बताइए ढूंढ के. ओह, इतना मुश्किल हो रहा है ढूंढना. ओके, रमेश चंद्र प्रभु. यस रमेश चंद्र प्रभु. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि. वेरी नाइस. और इसका मतलब? इसका मतलब जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है. वेरी नाइस. तो ये था श्लोका नंबर 22. कुछ लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं, तो दिस श्लोका 22. आप इसको प्लीज याद कर सकते हैं. इससे अगला श्लोका 23 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कोई बताएगा? यस, दीपशिखा माता जी, यू नो श्लोका 23. नैनम छिदन्ति. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेदेन त्यापो न शोष्यति मारुतः. वंडरफुल. इसका मतलब? आत्मा को ना तो आप किसी वेपन से कट कर सकते हैं, ना ही उसको अग्नि जला सकती है, ना ही उसको पानी सुखा सकता है, ना ही उसको आप हवा उसको सॉरी ना ही नॉट मोशन बाय द वाटर एंड नॉट विदर्ड बाय द विंड. ना ही उसको हवा सुखा सकती है. ओके, वेरी नाइस. और एक लास्ट क्वेश्चन आज का. वो श्लोक कौन सा है जिसमें भगवान बताते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु होना ही होना है, और जिसका मृत्यु है उसका जन्म होना ही होना है दोबारा? ये कौन से श्लोक में था? जो पढ़े हैं उनको जरूर तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत क्लियर. यस मतलब ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स. लॉ ऑफ सॉरी, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल. नो, ये कौन से श्लोक में बताया है कि जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु होना ही होना है, और जिसने मृत्यु श्लोक 20 नंबर श्लोक 28 शायद सर. नो, श्लोक नंबर 27. 27. श्लोक 27 में ये दिया गया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म. ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म अमृतस्य च तस्मा. ओके, वेरी नाइस. तो ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट. वेरी नाइस. आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग 20 भी कह रहा था. 20 शायद रमेश को कह रहे थे. 20 भी सिमिलर है प्रभु जी, लेकिन 20 थोड़ा सा अलग है ना. 20 में लिखा है फॉर ए सोल देयर इज नो बर्थ और डेथ, he has
he has not come into being. जो 20th है वो भी सोल के इटर्नल नेचर को बता रहा है, आज के श्लोक में भी यही है, लेकिन थोड़ा सा अलग बताया है। So that is also a good shloka to remember. Very nice. तो लेकिन आज के टेक्स्ट में कोई श्लोक याद करने वाला तो नहीं है, लेकिन आप पुराने वाले श्लोकों को याद कर लीजिए और अगले सेशन में कुछ श्लोक जरूर याद करने को मिलेंगे आपको। अगले में कम से कम 3-4 श्लोक होंगे जो आपको याद करने होंगे, है ना? तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ओके, सो बिफोर वी फिनिश, आई थिंक आपके स्कोर जो वो अटेंडेंस के वो सदानंद तूने डाले हैं उसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और ये आज की जो दोनों हमने वो समरी स्लाइड थी वो भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। अब कल बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, मैं 2 मिनट चाहता हूं आप लोगों के, अगर आप रुक सकते हैं तो। इज इट ओके? कैन वी टॉक लिटिल बिट? आज हम लोगों ने मॉर्निंग में थोड़ा सा उसके लिए डिस्कशन किया था, सो वी हैड very nice discussion, little bit of discussion. Ravi Prabhu was also there. आप में से कितने लोग ग्रेटर नोएडा में रहते हैं? जस्ट ए क्वेश्चन, मतलब if you can raise your hands, जो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। ओह, बस इतने लोग। रवि प्रभु, कुणाल प्रभु, रुद्र प्रताप प्रभु, दिव्या माता जी, रमेश चंद्र प्रभु, वरुण प्रभु, कविता सिंह, बाकी सब बाहर रहते हैं। आप ओके, तो मैं जस्ट यही बताना चाह, आशीष प्रभु भी रहते हैं। ओके, तो आप डिवोटीज चाहें तो, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो मॉर्निंग प्रोग्राम था यहाँ पे सेंटर में, रोज मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, उसमें रवि प्रभु आज आए थे एंड इट वाज वेरी नाइस टू मीट हिम। ऑनलाइन डिवोटीज को जब सामने मिलते हैं तो और अच्छा लगता है, अभी तो खिड़की में ही देखते हैं एक दूसरे को, फिर सामने दिखते हैं तो और अच्छा लगता है। तो आप भी आ सकते हैं। वी हैव अ सेंटर, इस्कॉन का हरे कृष्णा सेंटर अल्फा 1 में B58, तो यू कैन कम। दूसरा, जैसे आपको बताया था कि डेली मॉर्निंग में जपा होता है, जपा सेशन, उसमें 5 से 7 बजे तक हम लोग जप करते हैं जूम पर, तो ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और उसके बाद फिर 7 बजे से भगवान का थोड़ा आरती होता है और 7:15 से फिर भागवतम का क्लास होता है डेली। तो आप में से जो डिवोटीज उसमें ज्वाइन करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम। ऑनलाइन भी आ सकते हैं, ऑफलाइन भी आ सकते हैं। तो ये डेली होता है, संडेज को छोड़ के। संडे को थोड़ा सा शेड्यूल डिफरेंट होता है, लेकिन मंडे टू सैटरडे ये होता है। तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। और कल उसका लिंक हम आपको भेज देंगे, जो जूम लिंक होता है जपा का और जो क्लास का। और कल रामनवमी है, भगवान श्री रामचंद्र जी का अपीयरेंस डे है। और आज हम सुबह एक श्लोक पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम से, बहुत ही सुंदर श्लोक है, और उसमें बताते हैं कि जो डिवोटीज भगवान श्री रामचंद्र के ग्लोरीज को, भगवान श्री रामचंद्र के ग्लोरियस पास टाइम्स को डिस्कस को सुनेंगे, वो ईर्षा जो है, जो एनवी, ईर्षा का जो रोग है, हम सब के अंदर एनवी है। और हम सुबह डिस्कस कर रहे थे बहुत ही ब्रीफली, एक ही लाइन में मैं बताता हूँ कि हम लोग यहाँ सारे, हम जो इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, वो मटेरियल वर्ल्ड का जो मेन रीजन है वो ये है कि हम लोग ईर्षा कर चुके हैं। हम लोग भगवान से ईर्षा करते हैं। जैसे कि एक पुत्र बड़े आराम से अपने पिता के साथ सारी उम्र रह सकता है और उसकी प्रॉपर्टी अपने आप उसको मिल जाएगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, लेकिन जब पुत्र पिता से विद्रोह कर लेता है और उस घर को छोड़ देता है तो वो बड़ी उसकी कठिन वाली स्थिति होती है। ऐसे ही हम लोगों ने भगवान के धाम को छोड़कर इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग आते हैं, और उसका जो मुख्य कारण है वो है ईर्षा। ईर्षा जो है हमें मटेरियल वर्ल्ड में भी अच्छे से नहीं रहने देता। कभी दूसरा व्यक्ति थोड़ा प्रोग्रेस कर लेता है तो हमारे हृदय में ईर्षा होती है। आप में से कुछ लोगों को होती है ईर्षा, या फिर आप सब मुक्त आत्माएं हैं, बिल्कुल शुद्ध हैं, कोई ईर्षा नहीं होती? ओके, कुछ लोग बता रहे हैं ईर्षा होती है। बस 2 ही लोगों को ईर्षा होती है इस क्लास में, तो हम इनसे बच के रहेंगे। नहीं, ज्यादा को होती है। ओके, ज्यादा लोग कह रहे हैं। तो उस ईर्षा को जो से मुक्त हो पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम में ये बताते हैं क्या, पुरुषो रामचरितम, यहाँ पे बताते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के जो
पास्ट टाइम्स हैं, जो भगवान की लीलाएं हैं भगवान श्री रामचंद्र की, उनको जो सुनता है उसके हृदय से वो क्या होता है, ये ईर्ष्या का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है। तो कल भगवान राम का अपीयरेंस डे है, दोपहर के 12 बजे भगवान राम प्रकट होते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं, ओ किंग परीक्षित, एनीवन हु orally receives the narration concerning the characteristics of Lord Ramachandra's pastimes will ultimately be freed from the disease of envy and he will be liberated from the bondage of fruitive activities। तो बता रहे हैं क्या कि जो भगवान रामचंद्र की लीलाओं का श्रवण करते हैं वो लोग क्या होंगे, वो ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएंगे। तो जो लोग ईर्ष्या से, क्योंकि ईर्ष्या जो हमेशा डिस्टर्ब करता है, हमें सब कुछ मिल जाए लेकिन अगर हमारे हृदय में ईर्ष्या होगी तो हम खुश नहीं रह सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पुरुषो रामचरितम श्रवणेर उपधारयन् आनृष्यं स्यापरो राजन कर्म बंधेर विमुच्यते। तो बता रहे हैं कि उस ईर्ष्या के रोग से मुक्त होने के लिए एक बहुत ही सुंदर और सिंपल फॉर्मूला है भगवान राम के ग्लोरीज को सुनना। तो कल 12 बजे दोपहर के समय भगवान राम प्रकट होते हैं, इसलिए 12 बजे तक कल व्रत रहता है। आप लोग कोशिश करके कल 12 बजे तक व्रत रख सकते हैं, चाहें तो, ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस। You can take fruits and so you can fast from grains and if possible we don't take anything till 12 o'clock। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं या वो कल श्री राधा पार्थसारथी मंदिर दिल्ली टेम्पल में बहुत सुंदर अभिषेक का प्रोग्राम होगा, और जो नहीं रहते उनको यूट्यूब का लिंक भेज देंगे, वहां से आप देख सकते हैं, लाइव अभिषेक होगा भगवान का। इट्स विल बी ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन। तो रामनवमी को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा कि चलो रामनवमी की छुट्टी मिल जाती है, या रामनवमी इज टू इनवाइट लॉर्ड रामा इन आवर हार्ट। और आपके हृदय में भगवान राम का प्रवेश होगा तो योर हार्ट विल बिकम सो ब्यूटीफुल, कंड्यूसिव फॉर रिसीविंग द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। सो थैंक यू। so if you are taking medicine, so don't fast for sure, Prabhu, there is no doubt. So thank you very much. Welcome, Prabhu. Hare Krishna. We look forward to see you next Saturday. इस बीच आप प्लीज यहाँ तक के श्लोकों को पढ़ लीजिए सारे। अभी बहुत ज्यादा हमने कवर नहीं किया है। अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाद में एक साथ बहुत सारा पढ़ने को हो जाएगा, इसलिए साथ साथ पढ़ लीजिए। अभी एक हफ्ता है, जितना भी छूटा है पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लेट मी क्विकली, दोज हु वांट टू लीव they can go, but I'm just trying to take this question। एक डिवोटी ने मुझे 2-3 बार वो क्वेश्चन पुट किया है, तो I'm just quickly trying to answer this। Is there any, यहाँ पे डॉक्टर, मेरे को नाम तो पूरा नहीं दिख रहा है, is there any impact of parents karma on their children? Another question is why God is not giving remembrance of last life bad karma so that everyone will think good karma in this life। तो पूछ रहे हैं कि क्या, पहला क्वेश्चन इनका ये है कि क्या माता पिता के कर्म से बच्चे का इफेक्ट होता है। तो इसका मैं प्रयास करता हूं उत्तर देने का। तो एवरी जीवा इज ए इंडिविजुअल। जैसे आप एक इंडिविजुअल हैं, आपका भाई एक इंडिविजुअल है, आपके माता पिता एक इंडिविजुअल हैं, लेकिन भगवान के ये जो अरेंजमेंट में हम सब किसी सिचुएशन में, जहां पे हम एक फैमिली सिचुएशन में रहते हैं। अब इनका क्वेश्चन ये है कि क्या माता पिता के कर्मों का इफेक्ट बच्चों को मिलता है, क्योंकि हम क्लोजली वैसे तो सब इंडिविजुअल हैं, हर एक का अपना कर्मा का अकाउंट है, किसी का किसी अकाउंट से कोई ओवरलैपिंग नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम सारे एक परिवार में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर माता पिता ने कुकिंग किया और वो कुकिंग जो है वो सपोज किसी ने नॉन वेज कुक किया, राइट, लेट्स टेक एग्जांपल, और उनके पुत्र वो खा रहे हैं, तो नेचुरली वो माता पिता भी उनको भी उसका रिएक्शन मिलेगा और पुत्र को भी मिलेगा, क्योंकि दोनों ही उस विकर्म के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, करेक्ट। सो इन दैट वे उस घर का एनवायरनमेंट वो एक दूसरे
कार्मिक रिएक्शन इकट्ठा करने के लिए सिचुएशन बनाते हैं, हालांकि डायरेक्टली एक दूसरे के कर्मा को इम्पैक्ट नहीं होता है। हर एक लिविंग एंटिटी अपने कर्मा के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि सपोज किसी के माता पिता ने बनाया लेकिन उसने नहीं खाया, तो फिर उसको उसका कर्म का रिएक्शन नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो हर एक जीव का अपना कर्म का अकाउंट है, वो खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो ये नहीं कह सकता मेरे माता पिता का कर्म ऐसा था इसलिए मुझे ऐसा मिला। करेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा एक गरीब परिवार में पैदा होता है, तो कोई सोच सकता है कि तो माता पिता गरीब थे तो उसके कर्म की वजह से वो बेटा, तो माता पिता का जो कर्म है उसकी वजह से वो अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं गरीबी, उसका जो रिएक्शन है। लेकिन वो बच्चा गरीब परिवार में इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि उसका अपना कर्म ऐसा था कि उसको गरीब परिवार में जाके उसको एक्सपीरियंस करना है। राइट। तो जब दोनों कंडीशन सिमिलर हो गई तो भगवान ने उसको एक फैमिली में वहां पे भेज दिया, लाइक दैट। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो द आंसर इज नो। माता पिता के कर्म से बच्चे के कर्म अफेक्ट नहीं हो रहे। लेकिन अगर वो बच्चा माता पिता की उस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो एक्चुअली इन वन वे वो बच्चा भी वो कर्म कर रहा है, तो नेचुरली फिर वो अफेक्ट होगा। बट अदरवाइज द जीवा इज एन इंडिविजुअल सोल। अभी इस जन्म में कोई हमारे माता पिता हैं, पिछले जन्म में कोई और माता पिता थे, उससे पिछले में कोई और थे, और उन सबका कार्मिक रिएक्शन के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। हम अपने कार्मिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एक बड़ा सुंदर एक पॉइंट है यहाँ पे कि हाउएवर अगर कोई बच्चा या कोई भी फैमिली मेंबर भक्ति योगा को प्रैक्टिस करता है, तो भक्ति योगा को प्रैक्टिस करने से उसका जो बेनिफिट है वो सबको मिलता है। जैसे कि बताते हैं कि अगर किसी फैमिली में कोई शुद्ध भक्त बन गया, तो वो शुद्ध भक्त प्योर डिवोटी बन गया, तो उस फैमिली की 21 जनरेशंस अप एंड डाउन उन सबको भगवान की शुद्ध भक्ति करने का मौका मिलता है। तो भक्ति इतनी पावरफुल और इतनी इंड्यूसिव है, इंड्यूस करता है कि भक्ति का जो गिफ्ट है वो उससे एसोसिएटेड ना केवल परिवार को, सबको मिलता है। जैसे कि एक प्योर डिवोटी कहीं पे जप करता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो उसके आसपास जो इंसेक्ट्स हैं, उसके आसपास जो पौधे हैं, उसके आसपास जो लिविंग एंटिटी है, उन सबको वो हरे कृष्णा सुनने से वो प्योरीफाई होते हैं। तो इस तरह से एक डिवोटी के प्रेजेंस से वो पूरा एटमॉस्फेयर कृष्णा कॉन्शियस बनता है और उनके सारे कार्मिक क्रिएशन कटते जाते हैं। लेकिन अदरवाइज एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन कर्म। दिस इज व्हाट आई माई हम्बल अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन काफी ऊपर चला गया। अगला क्वेश्चन है कि भगवान रिमेम्बरेंस क्यों नहीं देते? भगवान रिमेम्बरेंस इसलिए नहीं देते पिछले लाइफ का कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर आपको याद हो कि पिछले जन्म में आपको किसी ने ये थप्पड़ मारा था, उससे पिछले जन्म में उसने मारा था, उससे पिछले जन्म में वो, तो ये तो उसी को सॉल्व करते हुए जन्म में निकल जाएगा, है ना। और दूसरा आपका क्वेश्चन है ताकि हम why God does not give remembrance of last karma so that everyone will think good karma। तो भगवान उसके लिए अरेंजमेंट दूसरा करते हैं। हमें हमारे पिछले कर्मों को याद दिलाने की बजाय भगवान हमें अभी शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं कि अच्छा कर्म क्या है, अच्छी एक्टिविटीज क्या है। अगर पुराने कितने जन्म है, कोई एक दो थोड़ी है, करोड़ों जन्म है। करोड़ों जन्म के रिएक्शन याद हो गए तो हम तो पहले इतने कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन, वी विल बी इन सुपर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। सो इट इज गॉड्स मर्सी, कृष्णा का मर्सी है कि हमें याद नहीं रहता। बहुत अच्छी बात है। सपोज कीजिए आपका अपनी वाइफ से लड़ाई हो, अभी आज ताजा ताजा लड़ाई हुआ है, कितना मुश्किल हो जाता है उस दिन संभालना, राइट। लेकिन 2 दिन बाद फिर वो ठीक हो जाता है, क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग, वो भी भूल जाते हैं, आप भी भूल जाते हो, और फिर 1 हफ्ते बाद तो ऐसे लगता ही नहीं कि लड़ाई हुआ था, करेक्ट। क्योंकि वो, लेकिन अगर हमारी वो वही रिमेम्बरेंस रहेगी, वही तेज उसी समय जैसा हमारा गुस्सा आ रहा था वो रहेगा, तो हम तो हमेशा फाइटिंग मोड में रहेंगे। तो इट इज गुड टू फॉरगेट, ये बहुत अच्छा है। जैसे कि इरेज करना बहुत अच्छा है, चाहे वो, है ना। सो दैट हेल्प्स अस, सो दैट इज लॉर्ड्स डिजायर्स, दैट इज लॉर्ड्स मर्सी अपॉन द लिविंग एंटिटी। डज आत्मा लीव बॉडी एज पर इट्स फिक्स्ड टेन्योर पीरियड और ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी? So Atma is in the body for the time being, for this temporary situation, which is a temporary combination of Atma, which is a temporary covering of the body, and then according to one's life duration, जिसका वो life duration जब उसका complete होता है,
then Atma leaves the body. Then different things become the reason. कभी किसी का एक्सीडेंट से हो सकता है, किसी को हार्ट अटैक से हो सकता है. Then this body gets destroyed. It can be destroyed for different reasons. But as soon as our life span will finish, at that time the death will come, and different things will come as a reason for that. Okay, so regarding Bhagavatam class, how to join link. Okay, so the good news is, अच्छा न्यूज ये कि भागवतम क्लास का भी यही लिंक है जो हम आपको आपकी इस क्लास का. तो इसी लिंक पे अगर आप सुबह 7:15 बजे 7:05 पे क्लिक करेंगे तो आप इसी लिंक से पहुंचे. नॉट फॉर संडे, फॉर अदर डेज. तो बट वी विल पोस्ट दीज लिंक्स इन योर ग्रुप्स राइट आफ्टर दिस क्लास. What are the important shlokas for today? Today 31 shloka and 38 shloka is most important. But इनको याद करने का जरूरत नहीं है. मतलब कर तो सकते हैं, ऐसे तो सारा भगवत गीता याद कर सकते हैं, लेकिन अगली बार होंगे. और पिछले बार में कई सारे श्लोक थे, वाशांसी जीर्णानि नयनम छिन्दन्ति, वो सारे श्लोकों को आप याद कर लीजिए. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. मॉर्निंग refer the class in future as how can we refer the classes in future as we get the link? Sorry, I could not understand this question. Can you please speak out, Prabhu? Sridhar Prabhu, your question, can you unmute and speak? I could not get your question. Namaste, Prabhuji. Namaste. The question which I ask is that the classes, which this is the first class for me to attend. It's wonderful. Namaste, namaste from the heart. Here actually the classes which I'm off the classes which I've been now attended. So how can I go through these previous classes and today classes in patient, cool mind to learn everything, because this okay. Can I ask you, where do you live, Prabhu? Thank you so much for myself Vadodara in Gujarat. Oh, you are from Gujarat. Yeah. Okay. So, Prabhu, are you connected to one of our WhatsApp groups or not? Yes, of course. Yeah. Which one? It is which is Bhagavad Gita Diploma something, right? Yes. So what you can do, Prabhu, you can send me your number. So yeah. I will send you the recording of all these classes till today. In that you can refer to that. The same number or different numbers, Prabhuji? No, you can send in the chat box here to me in the chat. My number, right? Yeah. So we will connect with you and we will try to send you all the recording. Thank you so much. And Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. We see you again next Saturday. Okay, so Bhagavatam class timing. Bhagavatam class का time सुबह 7:15 बजे से होता है, 7:15 AM from Monday to Saturday. Right? So that is the Bhagavatam class timing. So you are most welcome to attend. हम उसका link भी भेज देंगे. So thank you. Big thanks. Already 9 o'clock. Thanks. You are still here. And I am really grateful क्योंकि आप लोगों के होने से मुझे भी ये भगवद गीता करने का मौका मिल रहा है. अगर आप लोग नहीं होंगे तो it may be difficult alone to discuss with no one here Bhagavad Gita. So thank you and see you tomorrow. Happy Ram Navami. Happy celebrations. And thank you, Sridhar Prabhu. I got your number. I will send those things, recordings to you. Thank you. Hare Krishna and wish you a very happy Ram Navami once again. Prabhupada ki jai. Okay. Gayatri Mataji want to say something? Yes, please. Yeah. Please send me your recording also, sir. I'm sorry. Can you please come again? Please send me your all recording classes. Oh, okay. Where are you from, Mataji? Can you share? Are you coming first time today? No, this is. Sorry, this is second time? Yeah. Where are you from? If I can ask. From Mangalore, sir. Oh, you're from Mangalore. Mangalore. Sure. So then you also kindly send your number to me directly in this WhatsApp. Then I'll arrange to send those recordings on your WhatsApp number, please. Is that okay? How to send, sir? You know how to chat, how to put a message in the chat box? Do you know that? Or otherwise you can tell your number to me directly. You can tell your number like now. Thank you, Prabhuji. 98804. Just a moment. 9
8804. 88 Yeah. 93 144. I will repeat 98804 993144. No, 98804 93 Yeah. 144, sir. Okay. Yeah, sorry, my mistake. Okay, sure. We will send to this is a WhatsApp number also, right? Yes. Thank you. Prabhuji. Thank you, Gayatri. Mataji, we'll send you the last response. Okay, thank you. Hare Thank you very Krishna. much. Okay, someone has asked one more question. Important list of shlokas which we need to remember. I am from Mumbai. I missed part of this session. Okay. For today, thank you, Mamta. Mataji, you asked this question. So for today, we don't have any shloka from to remember. But what we will do, I will send the shlokas, all the shlokas to remember so far in the WhatsApp group again. So much for means I will try to complete this. Thank you. Okay, Nitika Shah Mataji has a point. Sorry, please unmute. Prabhuji, can you please share the slides of all the shlokas till now of chapter 2? I will share that with everyone in the groups. You should be in one of the groups, that's all. In this Bhagavad Gita online class group, I am. You are in Bhagavad Gita online class. Okay, so we will send in all the groups practically. The slides and recordings also. Recordings are on YouTube, so we will send the YouTube links and the classes and the slides also. Okay, you are from where? That's also in the same group, sir. Yes, same. Yeah, you are from where? Hello. You are from where, if I can ask, Nitika? Prabhuji, I am from Ahmedabad, Gujarat. Oh, you're from Ahmedabad. Okay. Yeah, and this is my second session today. This is the second. Thank you so much for coming to these classes. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So we end the meeting here. Hare Krishna. Please take dinner, take good rest, and remember Lord Rama. Yeah. Hare Krishna.